In the previous lecture, I have discussed the basics of the digital image processing and the basic fundamental of the digital image processing. What are the image representations and what are the application of digital image processing? You have just quick revision of the glimpse of the digital image processing. What are the basics image processing applications in 1960s and present? The image processing are used in broader range of applications. You have also know the basic applications in your daily life. Image processing are used in the medical sciences, medicine, X-ray like X-ray, CT, MRI. These are the basic imaging techniques are used for the diagnosis purpose. There are some image enhancement and restoration methods you have used for the enhancing the image. These are the archaeological. You have archaeology image restoration. You have used the ancient types image. You have used the image restoration techniques. Physics, electronic, microscopic. You have used for the material characteristics. In the material science, you have various electronic microscopes are used for the investigating the properties of the materials and many more. Astronomy, biology, nuclear medicines, law enforcement, defense, forensic science. There are various areas you have used the image processing. Industrial application, you have used the automations. There are various fields of the image processing. There are some glimpse of the basics of examples of fields that use the digital image processing. These are the principal energy sources of the image, the electromagnetic spectrums, acoustic, ultrasonic, electronics. You have also used the ultrasonic waves for the diagnosis purpose. You have used the ultrasonic waves for the diagnosis of the various diseases, tumors in the medical science. These are the spectrums of electromagnetic spectrum ranges according to the energy per photon. These are the essential basics of a spectrum of electromagnetic waves. Then the examples of the fields that use in the digital image processing. These are the spectrums and the range of the wavelength that are used in the digital image processing. These are the classification of the various images are used in the various fields. Like you have used X-ray imaging, you have the range for the X-ray, you have used the gamma rays, that is the spectrum and the wavelength that are used. What are the wavelength? Microwaves, what is the wavelength for the microwave imaging? Remote sensing. These are various fields of the digital imaging techniques for use the various applications. It's a very wide area. But you have used some examples of digital image processing in the unit 1. These are some glimpses. This is the field that's used the digital image processing. You have also know the gamma ray imaging. This is the use for the various investigations and the diagnosis purpose. X-ray imaging, you also know the diagnosis of X-ray. You have used the body parts of the X-ray. You have X-ray for the heart, X-ray for the lungs. These are X-ray imaging are used. Imaging for ultraviolet bands, imaging for visible and infrared bands, imaging for microwave bands. There are various imaging techniques. Infrared cameras are used for the surveillance purpose. These are various fields of the imaging that are used in the various applications. Just some examples of the image processing. And then in the previous lecture I have discussed some applications of the digital image processing in the various fields. This is the example of gamma ray imaging. It is used for the nuclear medicines, astronomy, nuclear medicine में ये आपका यूज करता है गामा ray imaging. These are the sculptures of the human image. And these are X-ray imaging. You have also know the medicine and the industry purpose. You are taking the X-ray of any man for diagnosis purpose. This is the X-ray of heart, lungs, and these are the industry counterparts. These are the medical counterparts of the X-ray imaging for the diagnosis purpose. Then the imaging ultraviolet bands. These are the lithography you have used for the various semiconductors fields. The basic lithographic, industrial inspections, fluorescence microscopy. These are the method lasers, biological imaging. These are the various fields of the
imaging ultraviolet bands, astronomical observations. These are various fields of ultraviolet bands. These are the sources we taken from the Gonzalez. These are online sources. This is standard textbooks for the digital image processing. Imaging in the visual and infrared bands. विजुअल एंड इंफ्रारेड के लिए एप्लीकेशन क्या है? लाइट माइक्रोस्कोपिक, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, इंडस्ट्री, लॉ इन्फोर्समेंट. अब जैसे फोरेंसिक साइंस में बायोमेट्रिक्स ली जाती हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस, फॉर द इन्वेस्टिंग द क्राइम सीन्स. दे आर द वेरियस फीचर्स ऑफ feature detection methods. Imaging in the visual and infrared bands. This is light microscopic. There are various electronic microscopics are used for the to observing the characteristics of the materials. The material की characteristics की हम study करते हैं, तो आपका electronic microscopic techniques है, electronic microscopic है, जिससे हम उनके molecular structures की study करते हैं. These are the imaging techniques. तो then these are the imaging in the visual and infrared bands. जैसे आपका इसरो वाले भी आपका सैटेलाइट इमेजिंग जो आपके कैप्चर करते हैं, उनकी भी एनालिसिस होती है. ठीक है, तो उनके कैमरास तो हाई डेफिनेशन के होते हैं. दीज आर द वेरियस बैंड्स, विजुअल ब्लू, वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वाटर पेनिट्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस. दीज आर द इमेजिंग बैंड्स. द थर्मोमेट्रिक बैंड्स इन द नासा, ये सैटेलाइट्स के लिए आपके जो इमेज कैप्चर करते हैं उनका क्या रेंज है, उनका क्या यूज है. विजुअल ग्रीन, ये वेवलेंथ है, गुड फॉर द मेजरिंग द प्लांट. एंड द विजुअल रेड्स, नियर इंफ्रारेड, बेकन्स एंड आपका सर्वेलांस पर्पज के लिए. दीज आर द रेंजेस एंड द वेवलेंथ्स. द इमेजिंग इन द विजुअल एंड इंफ्रारेड बैंड्स, जैसे थर्मल इमेजिंग भी होता है, जैसे आजकल सर्वेलांस के लिए आपके बाउंड्री ऑफ द आपके उसके लिए भी आपका पेट्रोलिंग के लिए भी यूज किया जाता है थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा. ठीक है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, ये आपका सर्वेलांस पर्पज के लिए भी, पेट्रोलिंग के लिए भी, जहाँ पे आपका रिमोट एरिया है, जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी फेंसिंग यूज की जा रही है, तो वहाँ पे आपका लेजर बीम और हाई डेफिनेशन कैमरास के द्वारा आपका पेट्रोलिंग होती है. कंट्रोल रूम से आप कनेक्ट होता है. जैसे आप ट्रैफिक में आप भी देख रहे हैं, एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल और मॉडर्न स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ें एसेंशियल है कि हाई डेफिनेशन कैमरेज लगे हैं. आपकी जो पीक आवर में कितना आपको ग्रीन लाइट, वाइट, येलो और ये है, उसके बाद आपका कोई रूल को ब्रेक कर रहा है तो उनका नंबर चालान कटना. तो आपका आजकल टेक्नोलॉजी के यूज से कैमरा से आपका जो हाई डेफिनेशन आपका HG आपके प्लेट्स हैं, उनसे आपका पूरा बायोडाटा पता चल जाता है, किसकी गाड़ी है, किसका वो है, पूरा आपका ऐप से कनेक्टेड है. तो आप जैसे रूल ब्रेक करते हैं तो आपके चालान आपके घर पहुंच जाता है. ठीक है, तो अब चीज़ें इस तरह से है, नंबर फीड है आपका सिस्टम से कनेक्टेड है कि ये नंबर है, रूल ब्रेक कर रहे हैं आप, जैसे ही ग्रीन आप सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं तो आपका फोटो गाड़ी का नंबर का खिंच जाता है और फिर आपके उसमें चला जाता है कि सॉफ्टवेयर में, और आपका डिटेल आ जाता है. ई परिवहन है ऐप भी, आपका पूरा डिटेल आ जाता है कि आपका किसके नाम गाड़ी है, क्या है. तो दीज आर द बेसिक्स एप्लीकेशंस. अब ये डिटेल्स ऑफ द इमेजिंग, दीज आर द बेसिक विजुअल्स ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. इन्हीं का डिटेल्स है कि आप पीसीबी, पैकेज, पिल्स, बॉटल्स, बबल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. दीज आर द बेसिक इमेजिंग फॉर द विजुअल एंड इंफ्रारेड बैंड्स के लिए ये बेसिक पिक्चर्स हैं. अब इमेजिंग इन विजुअल एंड इंफ्रारेड बैंड्स, अब देखते हैं आप वाटरमार्क्स भी ऐड करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, फॉर द ऑथेंटिकेशंस. आपके करेंसी नोट्स में, जैसे अब ये फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, यहाँ ऑथेंटिकेशंस के लिए विजुअल एंड और इनविजुअल वाटरमार्क्स ऐड है. वाटरमार्क मीन्स आपका हिडन सिक्योरिटी फीचर्स फॉर द कॉपीराइट ओनरशिप के लिए कि ये आपका ऑथेंटिक है, ये आपका ओरिजिनल है. ठीक है, अब जैसे फॉर टू प्रिवेंट द फेक करेंसी, अब वहां का है कि ये डॉलर में वहां के प्रेसिडेंट की पिक्चर है, उसके साथ थंब प्रिंट्स हैं. पेपर करेंसी में, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में देखिए हाई डेफिनेशन प्लेट्स हैं, ये सब इमेजेस हैं ना. तो वो इमेजिंग टेक्निक्स का ही है कि आप विजुअल रख रहे हैं. किस लिए विजुअल? इसलिए है जैसे आपका फॉर द इंडियन करेंसी यू हैव यूज्ड RBI सम ट्रेडमार्क्स, सम वाटरमार्क्स एंड पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी. दिस इज द ऑथेंटिक वाटरमार्क फॉर द लीगल करेंसी. तो वो विजुअल है. विजुअल वैन में कि आपका एक उस पर इस तरह के वाटरमार्क. सबसे पहले आपका जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने ये आपका ये प्रिंटिंग इमेजिंग यूज कर शुरू किया. ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की, ग्रो हुआ,
उसमें तो आपका नए फीचर्स ऐड ऑन हुए। तो इमेजिंग इन द माइक्रोवेव बैंड्स, अब रडार्स और आपके जो आपका रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव में क्रॉप्स का और वेदर कंडीशन कई चीजें का आपका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो उन तरह उनसे कैप्चर की गई साउथर्न, और ये सब उनके सी लेवल का पिक्चर है प्रेडिक्शन पर्पज के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ये आप मेडिसिन का है, ये देखिए एमआरआई है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग आपका, अब डायग्नोसिस पर्पज है ह्यूमन नी की, घुटने की स्थिति क्या है, लिगामेंट रैप्चर है कि नहीं है। तो एमआरआई से आपका ज्यादा क्लियर होता है, एक्सरे से उतना क्लियर नहीं होता हर बॉडी पार्ट का पूरा पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन कि क्या आपके बॉडी में क्या चल रहा है, क्या घुटने में क्या दिक्कत है। तो उनका ये पिक्चर है। स्पाइन का है, ये स्पाइनल कार्ड में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एमआरआई करने के लिए ज्यादा सजेस्ट करते हैं जो आर्थोपेडिक्स होते हैं। एक्सरे तो एक जनरल जैसे होता है ना, जनरल डायग्नोसिस है। एक्सरे आपका एक तरह से रफ आइडिया मिल जाएगा, लेकिन क्लियर पिक्चर आपका नहीं होगा। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस इन द मेडिसिन। इमेजिंग इन द रेडियो बैंड्स, अब रेडियो बैंड्स में एस्ट्रोनॉमी में पल्सर्स, ये दीज आर द वेरियस बैंड्स, गामा, एक्सरे, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेडियो, ये है उन्हीं को थोड़ा डिटेल में एलिबरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस। तो एग्जांपल विच अदर इमेजिंग मॉडलिटी आर यूज्ड, अब जैसे एकॉस्टिक इमेजिंग है, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस में अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी लो फ्रीक्वेंसी हुए, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग वेव्स उनकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो अलग इमेजिंग एप्लीकेशन अलग फील्ड में यूज होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जैसे आपका माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी आपके सिलिकॉन वेफर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्नोज करने के लिए एसटीएम टेक्निक्स है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की पूरी एनालिसिस होती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। सिंथेसिस कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, सीटीपीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, जैसे सीटी स्कैन करते हैं हर पार्ट की, आपकी ब्रेन से लेके नोज के हर पार्ट की सीटी देते हैं, तो आपका क्लियर आपका पिक्चर बॉडी पार्ट का कि एक स्पेसिफिक एरिया का भी लेते हैं जहां पे आपका बीमारी है डायग्नोसिस के लिए। जैसे आपका नोज का, जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, सिटी आप इस पर्टिकुलर एरिया का भी होता है कि आप पीएनएस, आपका साइनस नोजल एरिया आपके क्या उस दिक्कत है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके आपका इमेज कैप्चर करेंगे, ठीक है। हेडेक है तो आपके ये नोजल एरिया का क्या दिक्कत है, इसमें हड्डी में या कुछ दिक्कत है, तो उसका पर्टिकुलर सिटी उसका भी होता है, तो उसको सिटी इन पीएनएस आपका ये तो स्पेसिफिक है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, अब अल्ट्रासाउंड केवल अब मेडिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं है, अदर पार्ट्स के लिए भी यूज होता है, एक्सप्लोरेशंस के लिए और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अब यहाँ पे अदर इमेजिंग मॉडलिटीज आर यूज्ड, अल्ट्रासाउंड्स, मिनरल्स और ऑयल एक्सप्लोरेशंस के लिए, ऑयल के खोजने के लिए कहाँ पे आपका ऑयल है कि नहीं है, तो उनके लिए भी यूज होता है। क्रॉस सेक्शनल इमेज सेंसमिक मॉडल्स है, जैसे आपका माइनिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस। अब अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल साइंस, एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। इकोस पे बेस्ड रहता है कि आपका अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, टारगेट से हिट होकर फिर आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो आपका जैसे आपका एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपका इससे जो पिक्चर आती है अलग अलग पार्ट्स का है कि एग्जांपल ऑफ बेबी और अदर है। इसी तरह से आप एब्डोमिनल में आपका जैसे स्टोन है किडनी का लेफ्ट राइट, तो उसका रिफ्लेक्शन आता है और उसकी टर्मोलॉजी है कि कैसे वो बताते हैं। उसके बाद इमेज फिल्म निकालते हैं ना, तो क्लियर आपका पिक्चर आपका होता है कि हाँ यहाँ पे आपका स्टोन है या अदर है। तो बॉडी में एब्डोमिनल में एबनॉर्मलिटी है तो अल्ट्रासाउंड जनरली कहते हैं, ठीक है। अब इन इमेजिंग डिफरेंट फील्ड्स फॉर द मटेरियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशंस, देयर आर वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। स्टेम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, अब फिर इसी को कई तरीके से, सेम है स्कैनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और टेम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज आर द वेरियस फील्ड। अब इसको हम डिटेल में नहीं जाते हैं, दीज आर द यूज फॉर द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कोई टंगस्टन फिलामेंट थर्मल फ्लोर्स, अब इमेज है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हम जो डेवलपमेंट है उनके लिए ये आपका इमेजिंग टेक्निक यूज होता है। बड़ी सॉफ्टिकेटेड है, बहुत ही आपकी एडवांस है, क्योंकि बहुत ही नैनो पार्टिकल्स की बात होती है ना, तो वहां पे ये एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में मैनुअल वाले होते थे स्लाइड लगा के, ठीक है। अब वो आप वायरस और बैक्टीरिया की जांच करते थे ना, तो उसमें जो एक्यूरेसी रहती थी थोड़ी उतनी कम है, आजकल तो काफी ऑटोमेटेड हो गया है,
चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो उनकी विजिबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है इन कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में तो आपका यह थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं ना, आपकी ह्यूमन विजिबिलिटी एरर होने के चांसेस हैं, आप रीडिंग लेने में, आप ऑब्जर्व करने में, और फिर प्रेडिक्ट करने में भी कितना आपकी एक्यूरेसी है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। फिर वो स्टैंडर्ड टेबल से उसको कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू उस स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड वैल्यू से मिल रही है तो ये डिजीज होगी। नहीं तो जैसे ब्लड का आप टेस्ट कराते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, जो आपके उतने एडवांस लैब नहीं रहते, तो वो क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देते हैं ना, वहां से रेंज टैली कराते हैं, हाँ इस रेंज तक है तो ये हो सकता है। एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट नहीं यूज करते जो जिनके पास पुराने माइक्रोस्कोप है। हाँ ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ज्यादा है, क्योंकि जो बहुत लोगों का होता है ना, हाथ सेट होता है, तो कन्वेंशनल पे भी आप देखते देखते एक्सपीरियंस रहती है, तो चीजें वो क्लियर कर लेते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी है, कुछ डिजिटल इक्विपमेंट है, कुछ तो जैसे कभी उसमें कुछ दिक्कत हो गई, एक्यूरेसी उतनी नहीं है, फॉल्ट है, तो गड़बड़ रीडिंग बता रहा है, लेकिन हम 2 बार कैलिब्रेशन होता है, 2 बार आपका कंपेरिजन होता है, एक बार मैनुअली, एक बार ऑटोमेटेड, तो 2 स्टेज का आपका चेकिंग है। अभी इमेज के लिए, पौधों के लिए, ग्रोथ के बारे में, ये भी आपका एक तरह से इमेजिंग टेक्निक्स है। फ्रैक्टल्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, आप डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके ग्रोथ के बारे में, उनकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ये आप एडवांस टेक्नोलॉजी है। दीज आप, ये है फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? योर फर्स्ट, दिस इज द बेसिक block diagram, a basic layout of the image processing. First of all, you are taking the image acquisition, pre-processing. First you have take the image, raw image, then you have take the knowledge based system in chapter. These are the classification according the chapter. This is the basic layout. You have problem domain, then you have analyze pre-processing stage, then image display, you taking and you have processed the image, and then goes to the different stages. You have used the image enhancement. Image can be enhanced by some filtering techniques. Some defects are the image, then you have some algorithmic approach to enhance the image. Then goes to the image restoration and degradation image. And degraded image restoration of degraded image में आपका जैसे कई तरह के कैमरा के थ्रू आप पिक्चर ले रहे हैं, तो there are various artifacts are being coming. There are some camera movement, there are blurring effects are being occur. Blurring can be not permanently removed, क्योंकि कई तरह का मोशन ब्लर हुआ है तो आप पिक्सल्स डायमेंशन आपके चेंज हो गए, जैसे आप फोटो खींचते हैं ना कि आप बैकग्राउंड में थोड़ा चमक आ जाती है, ठीक है। हाँ कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो रिमूव कर रहे हैं, परमानेंटली हर चीजों को रिमूव आउट नहीं कर पाते, मोशन ब्लर को थोड़ा सा करना, क्योंकि आप पिक्सल्स पूरे घूम गए, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है और कैमरा है, उसमें मूवमेंट हो गया, कैमरा फोटो खींचते समय आपका कैमरा का मोशन हो गया, तो आपका पिक्चर थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है, उतने अच्छे बैकग्राउंड नहीं, पीछे का लाइट या शैडो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो परफेक्शन उतना नहीं रहेगा। तो जैसे आजकल तो आज कैमरा में फीचर्स हैं सेल्फी बेस्ड, एआई बेस्ड, वो सेल्फ इनहांस कर देते हैं, लेकिन वो वही करते हैं जब एक्चुअल आपका पिक्चर अच्छा हो। जब वो आपका डिस्टॉर्टेड रहेगा तो वो ज्यादा कुछ थोड़ा सा इनहांस कर देगा बैकग्राउंड, लेकिन पूरी तरह से आपका बैकग्राउंड को रिमूव आउट नहीं कर पाएगा ना, या दूसरी टेक्निक करना पड़ेगा आपको, तब भी वो पूरे एक्चुअल अगर पिक्सल्स आपके फिगर लाइट पड़ गया है, शैडो पड़ गया है, तो वो सही नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। दीज आर द स्टेजेस टू फॉर द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इमेज एक्विजिशन मतलब आप पहले प्री प्रोसेस करेंगे इमेज को, फिर उसको इनहांस करेंगे, देन रिस्टोर करेंगे, और ये अलग अलग कलर इमेज है तो कलर मॉडल कलर प्रोसेसिंग करेंगे, जनरल है तो आपका, और फिर उसके बाद आपका डिफरेंट है कि आपका ट्रांसफॉर्म डोमेन में है तो उसको किस तरह से करेंगे। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स फॉर द इमेज प्रोसेसिंग। तो आपका ये बेसिक स्टेप्स हैं कि आपका इमेज एनहांसमेंट होगा, रिस्टोरेशन होगा एंड एनालिसिस होगा। दीज आर द फंडामेंटल स्टेप्स फॉर द इमेज प्रोसेसिंग। आपके यूनिट 1 में ये चीजें आपका स्टेप पहला ही ये बेसिक्स है कि इमेज एनहांसमेंट कैसे करते हैं, इमेज रिस्टोरेशन कैसे करते हैं। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्री पार्ट्स फॉर द इमेज प्रोसेसिंग। ये आपका चैप्टर का ये है कंपोनेंट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, वो पूरा आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का लेआउट था
कि जो बुक का पूरा जो बैकग्राउंड था, चैप्टर 1 में क्या होगा, चैप्टर 2 में क्या होगा, चैप्टर 3 में क्या होगा, चैप्टर, वो आपको सिलेबस में तो पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सिलेबस में ये है कि आपका इमेज, आपका है बेसिक इमेज फंडामेंटल्स, इमेज एनहांसमेंट पढ़ना है, इमेज रेस्टोरेशन पढ़ना है, कलर इमेज प्रोसेसिंग थोड़ा सा पढ़ना है, वेवलेट नहीं पढ़ना है, कंप्रेशन पढ़ना है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल है, सेगमेंटेशन है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन है। ये आपका ऑब्जेक्ट रिकग्निशन नहीं पढ़ना है। ये मतलब पूरे जो गोंजाल्विस बुक का पूरा लेआउट था वो। लेकिन अब यहाँ पे आपका इमेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, आपका जो इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ब्लॉक डायग्राम, क्या क्या चीजें इसेंशियल होंगी आपका। तो पहले आप कैमरे से जो अब यहाँ जो प्रॉब्लम डोमेन दिखा रहे हैं, फिर इमेज सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, उससे डेटा मिलेगा, फिर स्पेशलाइज करें इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर से जो कैमरा है, ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर से प्रोसेस करेंगे ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, फिर आपका अब इमेज डिस्प्ले डिवाइसेस से उसको डिस्प्ले करेंगे और फिर स्टोर करेंगे। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ जनरल पर्पज इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑनलाइन एचडी, सीडी रोम, दीज आर द बेसिक इमेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स जनरल पर्पज के लिए। अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग करना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। पहले तो आप क्या है, कैमरा होगा, ठीक है, फिर उसको उसका कैमरे को फिर उसको कनेक्ट करेंगे हार्डवेयर डिवाइस से, फिर उसका जो इमेज कैप्चर किया फिर उसको आप स्टोर करेंगे, मेमोरी होगा, फिर आप प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, अब उसमें कुछ करना चाह रहे हैं, फिर उसको डिस्प्ले करेंगे मॉनिटर के थ्रू या डिस्प्ले डिवाइस है जो आपका, एंड देन स्टोर कर देंगे उसको प्रोसेस करने के बाद। तो दीज आर द बेसिक। अब जैसे कि एग्जांपल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, अब जैसे ये कह रहे हैं दो कैमरे से ये इमेज को लिया, ठीक है, दीज आर टू सेंसर, सीसीटी बेस एंड स्कैनर, ठीक है, आईडी कार्ड बना रहे हैं हम, ठीक है, और फिर प्रिंट किया, फिर उसको ये आपका प्रिंटेड आपका आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, और कुछ फीचर उसमें डालना है, बायोमेट्रिक वाट्रिक, तो वो आपका वाटरमार्क। अब जनरलाइज इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, अब यहां पे आपका जो पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक डायग्राम है कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स होंगे इमेज प्रोसेसिंग के। तो आपका जैसे कि ये एक तरह से एग्जांपल है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का, ये प्रैक्टिकल एक तरह से व्यू दे रहे हैं कि आपके दो कैमरे से हमने फोटो लिया, चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक है, और स्कैनर, ठीक है, दोनों को हमने इमेज एक्विजिशन किया, प्री प्रोसेस किया, ठीक है, दोनों के डेटा को, ठीक है, प्री प्रोसेस करने के बाद अब इसको इनपुट डिवाइस करेक्शन के थ्रू जो करेक्ट उसको इंटरफेस किया, ठीक। अब इनपुट डिवाइस पैरामीटर जनरेशन, उसमें आप फीचर सिलेक्शन जो कुछ करना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग किया, अगर किसी का बैकग्राउंड हटाना है या कुछ इनहांस करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो वो चीज किया, इमेज प्रोसेसिंग किया, एडिटिंग किया, अगर कुछ उसमें ब्लर कुछ है कुछ तो आर्टिफैक्ट्स को हटाया, फिर सेव किया, मेंबर डेटाबेस में एक डेटाबेस बनाया होगा, फिर वहां सेव किया, फिर इसको कार्ड इमेज आप जनरेट कर रहे हैं, फिर या उसको प्रिंटर से करेक्ट किया और प्रिंट कर दिया। तो आईडी कार्ड एक तरह से आपका जो सिंपल एग्जांपल हुआ कि जो इमेज प्रोसेसिंग का जैसे कार्ड आईडी कार्ड बनाने के लिए इमेज को प्रोसेस करके कैसे हम बेसिक स्टेप्स यूज करके, ये सिंपल है कि आपका इमेज एक्विजिशन हो गया, इमेज डिवाइस कैलिब्रेशन हो गया, ये इमेज प्रोसेसिंग एडिटिंग, एम्प्लॉय क्लाइंट डेटाबेस, अब जो बाइफर्केशन हो गया कि एम्प्लॉय और क्या क्या उसको बाइफर्केट करेंगे, एंड आईडी कार्ड डिजाइनर होगा, ठीक है, जनरेटर्स होगा, प्रिंट कैलिब्रेशन होगा, कलर है ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, प्रिंटर कलेक्टर कंट्रोलर होगा, और नेटवर्क प्रिंटर पे रहेगा, बल्क में छापना है, ठीक है, ऐसे है ना, जैसे आपका हम आईडी कार्ड यूनिवर्सिटी छपवा रही है तो पूरा एक फोटो कलेक्ट की फिर उसके बाद प्रिंट कर दे दी, ठीक है, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन हो गया। अब ये कह रहे हैं डिफरेंट्स आपके इमेज एक्विजिशन है, स्कैनर है, इसका क्या बेसिक है, ये आपका जो सीसीडी और है तो बिटमैप फाइल के फॉर्म में सेव हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, एक एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कि इमेज डिवाइस पैरामीटर जनरेशंस में आपका ये टारगेट है, ये दो टारगेट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो इमेज ली गई है कैप्चर की गई है सीसीडी एंड स्कैनर्स के, देन यू हैव गो थ्रू द इमेज एक्विजिशन प्री प्रोसेसिंग स्टेज एंड देन ये correction parameters and the correction parameters are these are basic building blocks of the, ये आपका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है।
उसी को फिर हम स्टेप बाय स्टेप इमेज डिवाइस करेक्शन क्या होता है, उनका बेसिक पर्पज क्या है, उनको एलिबरेट किया गया है। इनपुट इमेज आपकी जो आरजीबी कलर हो सकती है, फिर उसको इमेज डिवाइस करेक्शंस के थ्रू भेजा जा रहा है। ये दीज आर द एलिबरेटेड स्टेप्स ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग। अब इमेज प्रोसेसिंग, एग्जांपल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, क्या आप बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी करते हैं, एडिटिंग करते हैं? दीज आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स। हम जो स्टेप्स को ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस किया गया था, उनके स्टेप बाय स्टेप हम डिस्क्रिप्शन हर स्लाइड्स में हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। दीज आर द चाइनीज वर्ड्स। तो आपका, क्योंकि ये इंटरनेशनल बुक है, मेंबर डेटाबेस, सेव इमेज, ये आपकी जो गोंजाल्विस की स्लाइड है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, आईडी कार्ड एडिटिंग में क्या क्या आपके ब्लॉक डायग्राम यूज हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। तो प्रिंटर पैरामीटर जनरेशन का क्या बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, क्या क्या चीजें होती हैं, उनको यहाँ पे इस तरह से एलोबरेट किया गया है। उन्हीं को एक एक तरह से कई बार, अब ये फाइल फॉर्मेट है, देयर आर वेरियस फाइल फॉर्मेट फॉर द सेविंग द इमेज, उनके सेट पैरामीटर्स हैं। टीजीए फाइल फॉर्मेट्स क्या होता है, वो सपोर्ट करता है, टीजीए फाइल्स सपोर्ट्स द 8, 15, 16, 24, 32 बिट डेप्थ। इन कितने बिट्स, क्या वो आप उस साइज के 8 बिट कैन बी प्रेजेंट ए ग्रे लेवल, ठीक है। उन तरह के आपके इमेजेस को क्लासिफाई करके इस तरह से हम, जैसे पीएनजी हो गया, बिट मैप हो गया, ठीक है, जेपीजी हो गया, तो उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका फाइल फॉर्मेट है, कैसे उनको स्टोर करते हैं, और उनका फॉर्मेट का डिस्क्रिप्शन है। एडिशनल फुटर इंफॉर्मेशंस कैसे डिनोट करते हैं, और उनका क्या ओरिएंटेशन है। तो ये आपका ये उनका टीजीए फाइल फॉर्मेट का डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे काम करता है, कितनी बिट के लिए ये यूजफुल है, तो उनका ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रक्चरल पूरा, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इन द नेक्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस सम अदर पैरामीटर्स ऑफ द digital image processing. That's all.